Hello everyone, welcome to Study and Fix. In today's video, we are going to discuss about one of the very famous poetry by Ralph Waldo Emerson, Brahma. Before moving to poem, let's discuss about the author. So this poem, Brahma, was written by Ralph Waldo Emerson, and he who born on 25th of May 1803 and died on 27th of April 1882. He was an American essayist, lecturer, philosopher, and poet, and he is also a central figure of transcendentalist movement, which has happened in the 19th century. Emerson championed individualism, self-reliance, and the spiritual connection between humanity and nature. So I think you know about the transcendentalism. It's a movement which had happened between 1920 to 1930, and this was advocating the individualism of the people, their behavior, and self-reliance. So he has written a lot of essays. So Emerson championed individualism, self-reliance, and the spiritual connection between humanity and culture. He has written a lot of essays such as The Self-Reliance, Nature, and The American Scholar, challenged conventional thought and inspired generations to think independently and embrace their inner potential. So the Emerson's work laid down the foundation of American intellectual and literary traditions. So थोड़ा सा just to make you understand, तो इनको सेल्फ रिलायंस, नेचर और अमेरिकन स्कॉलर ये रहे, तो बेसिकली इनका जो ये टॉपिक्स है वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो कि मेटाफिजिक्स से भी कहीं पर जुड़े हुए हैं, उनको इन्होंने आगे लेकर के आए. एंड ही हैड इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल, राइट. अपने टाइम के इन्होंने पोइट्स को भी इंस्पायर किया और ज़्यादा फोकस किया इनर पोटेंशियल पे, इंसान के खुद के सोचने पर, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख के चीज़ों के करने पर, रादर देन कि कोई बाहर से सेट रूल्स को उनको फॉलो करने के. सो ही वॉज एक्चुअली अ वेरी इंटेंस थिंकर who used to think about the humankind, right? So the Emerson's work laid down the foundation of American intellectual and literary traditions, influencing writers like Henry David Thoreau and Walt Whitman. The central theme of Ralph Waldo Emerson's poem Brahma is the unity of all existence and the transcendence of soul beyond the physical world. तो साफ शब्दों में इनको कहा जाए तो जो पोएम है ये बेसिकली आपको बता, ये जो सेंट्रल थीम है राल्फ वॉल्डो एमरसन्स की जो ब्रह्मा है, इट इज़ अ सेंट्रल थीम एंड इट टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड वो जो सोल है जो कि जिसके ये बेसिकली सोल के बारे में ज़्यादा बात करती है, जो कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड है. सो ये बेसिकली हिंदू फिलॉसफी से ली गई है और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से दिखाया गया है. एंड द ब्रह्मन इज व्हाट, ब्रह्मन इज अ यूनिवर्सल स्पिरिट. मतलब ब्रह्मन का यहाँ पर किसी जाति विशेष से नहीं मतलब है, इट इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल स्पिरिट. ठीक है. और एमरसन ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ अपोजिट लाइक लाइफ एंड डेथ, गुड एंड इविल, नियर और फार, ये सारी चीज़ें, पास होना, दूर होना, मरना, जीना, ये सब जस्ट इल्यूजन्स हैं इन द ग्रांड स्कीम ऑफ द इटर्नल सोल. मतलब आत्मा ही सबसे ज़्यादा इटर्नल है, बाकी ये सारी चीज़ें भ्रम मात्र हैं. सो द की आइडियाज इन द पोएम इंक्लूड नॉन डुअलिटी. So non-duality is what? All the things are one in the divine essence. There is no true separation. मतलब कोई भी चीज़, मरना या जीना, ये दो चीज़ें सेपरेट नहीं हैं. It is one. It is being told as one, right? So that is called non-duality. Then then it talks about the immortality of the soul. The soul is eternal and cannot be harmed or destroyed, as we Indian had read in the Bhagavad Gita as well. I'm not showing any inclination towards the religion, but लोगों ने टीवी में देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो आत्मा है इट इज़ इटर्नल, इसे हार्म भी नहीं किया जा सकता, नीदर नॉर वी कैन
डिस्ट्रॉयड, हम इसे ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो आइडियाज़ है इस पोम में एक्सप्रेस किया है। इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इल्यूजन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, मतलब हमें जो लगता है कि रियलिटी है, जो रियलिटी है ना, जिसे हम परसीव करते हैं, हम समझते हैं कि वो रियलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं है, और इट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। फिर स्पिरिचुअल इंसाइट्स की बात करते हैं, जैसे कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम द इनर विजन। तो हमारी जो, जैसे हम कहते हैं ना कि खुद की खुशी अपने अंदर से होती है, तो सिमिलरली ये भी उसी उसी स्पिरिचुअल इंसाइट्स की बात कर रहा है, जो कि हम अपना आत्म मंथन खुद कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स वो चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा पोएम की तरफ चलते हैं और स्टेंजा बाय स्टेंजा इसे लर्न करते हैं। सो इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेस, और इफ द स्लेन थिंक ही स्लेन। तो यहाँ पर रेड स्लेयर किसे कहा जा रहा है? रेड स्लेयर मतलब जो कातिल है, मतलब जो खून कर रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो इमर्स, तो कि मैंने उसको ख़त्म कर दिया, मैंने मार दिया किसी को, या स्लेन जिसको मार दिया गया उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मर गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन लाइनों से इमर्सन जो है अपनी एक पैराडॉक्स जो हिंदू फिलोसफी का है ना, मतलब ये वहाँ से इन लाइनों को शुरू करते हैं। दीज आर द लाइन पर्टिकुलरली फ्रॉम द भगवद गीता, ठीक है। जो किलर है और जो विक्टिम है, ये दोनों चीज़ें मिस्टेकन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सच है, ये इट इज़ नॉट फाइनल, ये फाइनैलिटी ऑफ डेथ नहीं है। अभी क्या है, वॉट इज़ द फाइनल? इन द स्पिरिचुअल रियम द सोल इज इटर्नल एंड कैन नॉट बी ट्रूली किल्ड और डिस्ट्रॉयड। जैसा हमने अभी बात किया, तो सोल इटर्नल है, इट कैन नॉट बी ट्रूली किल्ड और डिस्ट्रॉयड, राइट। द नेक्स्ट लाइन सेज दे नो नॉट वेल द सटल वे आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। मतलब इनको नहीं पता है कि जटिल वो रास्ता क्या है, ठीक है। मैं ऐसा होता है और फिर से वापस चीज़ें हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है डिविनिटी की तरफ थोड़ी सी लाइनें कह रही हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर हैं ब्रह्मा है, मतलब खुद गॉड लॉर्ड ब्रह्मा इन बात को कह रहे हैं कि देर इज अ यूनिवर्सल स्पिरिट, है ना, जो ट्रूथ, जो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ है, जो जो सेटल और साइक्लिकल है। मतलब आज जो हो रहा है, किसी का जीवन आज जाता है तो वो रीबर्थ करता है, यानी कि सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जैसे हम कहते हैं ना भगवत गीता में ट्रांसफ़र होती है। तो इसे उसी तरह से जोड़ करके देखा जा रहा है। सो द लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ आर पार्ट ऑफ डिवाइन प्रोसेस, ठीक है, जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। ब्रह्मा मूव थ्रू ऑल द फॉर्म, और ये जैसे ब्रह्मा कहते हैं कि मैं खुद ही हूँ जो मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वो अपने आप को कभी नहीं रोकते, अपने आप को कभी सीज नहीं करते। तो यहाँ पर थोड़ा सा गॉड को प्रेजेंट किया जा रहा है कि हाउ दिस एंटायर यूनिवर्स वर्क्स। फार और फॉरगॉट टू मी इज नियर, शैडो एंड सनलाइट आर द सेम। यहाँ पर जो लाइनें हैं सेस, मतलब जो मेरे पास हैं और जो दूर हैं, जो जो जिनको भुला चुके हैं, जो दूर हैं भुला चुके हैं, वो चीज़ें भी मेरे पास ही हैं अभी। शैडो एंड सनलाइट्स आर द सेम, मतलब मेरे लिए रोशनी और शैडो दोनों सेम है। तो यहाँ पर ब्रह्मा सीज नो डिफरेंस बिटवीन दी अपोजिट्स, राइट। उनका कोई भी देखने के संदर्भ में दोनों चीज़ें अपोजिट नहीं है, अलग अलग नहीं है। डिस्टेंस एंड मेमोरी, लाइट एंड डार्क, ये जो डुअलिटीज़ हैं, ये सब इल्यूजन है, भ्रम है। इन द डिवाइन पर्सपेक्टिव ऑल थिंग्स आर यूनिफाइड एंड इक्वल, ये सब चीज़ें यूनिफाइड है और बराबर है, समान है। द वैनिश गोड्स टू मी अपीयर एंड वन टू मी आर सेम शेम एंड फेम। यहाँ पर जो 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 गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं जो गॉड, वो भी मेरे सामने भी प्रत्यक्ष रूप से हैं, ठीक है। और नाउ इस इन लाइनों में जो है, जो ब्रह्मा है, ही सेज कि इवन द फॉरगॉटन डीटीज, जो भूल चुके जो देवी देवता, वो भी मेरे सामने भी प्रेजेंट हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। एंड सिमिलरली ह्यूमन जजमेंट, जैसे कि शेम, फेम, ये सब मेरे लिए मीनिंगनेस है, इसका कोई मीनिंग मेरे लिए नहीं है, ठीक है।
जब ये इटर्नल स्पिरिट पे जाते हैं तो इन सब की बात जो वैल्यू है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो द ब्रह्मा यहाँ पर जो ट्रांसेंड करते हैं टाइम को, मेमोरी एंड उसके भी रिलेटेड और जो चीज़ों को। तो यहाँ का ब्रह्मा जो इन पूरी लाइनों से बताना चाह रहे हैं कि मैं सर्वोपरि हूँ, सबसे ऊपर हूँ, राइट। मैं ही अनंत हूँ और सोल ही अनंत है। सो नेक्स्ट लाइन सेज हियर, दे रेकन इल हु लीव मी आउट व्हेन मी दे फ्लाई, आई एम द विंग्स। मतलब जिन्होंने ब्रह्मा की रियलिटी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इवन व्हेन द पीपल ट्राई टू एस्केप और डिनाई द डिवाइन, जिनको ऐसा भी समझते हैं कि उनको अगर वो डिनाई भी करते हैं डिवाइन चीज़ों को, तो ब्रह्मा इज द वेरी फोर्स दैट अनेबल देयर मूवमेंट। इवन वो ही उनकी पंख हैं, जो ब्रह्मा के जो खुद ही विंग्स हैं, जो उनको आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। आई एम द डाउटर एंड द डाउट, आई एम द हिम द ब्राह्मण सिंग्स। मतलब मैं ही डाउटर हूँ, मैं ही डाउट करने वाला हूँ और मैं ही डाउट हूँ, ठीक है। और मैं वही मंत्र हूँ, वही गूंज हूँ जो ब्राह्मण गाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा इस तरीके से, ब्रह्मा इज प्रेजेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थॉट एंड बिलीफ। इवन जब हम बात करते हैं डाउट की, स्केप्टिसिज्म की, तब भी ब्रह्मा है। मतलब डाउट भी वही है और डाउटर भी वही हैं। अब वो क्वेश्चंस भी हैं और आंसर भी हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं, दिस एम्फसाइजेस ओमनी प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इन ऑल मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस। ये लाइनें बताती हैं कि ब्रह्मा की सर्वव्यापकता, हर जगह वो प्रेजेंट है, ठीक है, इन ऑल मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस में, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से भी अवेलेबल हैं और मेंटल रूप में भी अवेलेबल हैं। The strong gods pine for my abode and pine in vain the sacred seven। तो यहाँ पर जो इवन पावरफुल जो गॉड हैं, जो पावरफुल गॉड हैं, वो भी मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन वो भी मेरे पास आसानी से नहीं आ सकते हैं, राइट। उनको भी मुझे तक मिलने के लिए एक स्पिरिचुअलिटी के पीक तक जाना होता है। द सेक्रेड सेवन में रेफर टू द सेवन सेजेस। आपको पता है ना, 7 ऋषि जो हम बात करते हैं, तो 7 सेजेस जो हैं, इनको ये रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। और ये जो 7 सेजेस हैं, ये सेलेस्टियल बीइंग्स हैं जो कि हिंदू मिथोलॉजी में होते हैं, ठीक है। और द यर्निंग शोज दैट ब्रह्मा एसेंस इज बियॉन्ड इवन डिवाइन बीइंग्स। मतलब जो दैविक रूप से चीज़ें, उससे भी ऊपर ब्रह्मा हैं, ठीक है। बट दाउ मीक लवर ऑफ द गॉड फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन। तो यहाँ पर इनसे जो एमर्सन है वो कंक्लूड कर रहे हैं अब, ठीक है, दैट विद द कॉल ऑफ ए हम्बल सीकर टू द हम्बल सीकर, ठीक है। जो ट्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, दैट कम नॉट थ्रू द पावर और एम्बिशन। लेकिन ये कैसे आती हैं चीज़ें, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, ये आती है गुडनेस और ह्यूमिलिटी से, ठीक है। सो द फाइनल जो लाइन है वो कह रहे हैं, टर्न दाई बैक ऑन हेवन। मतलब ये ऐसा सजेस्ट करें दैट इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये भी डिस्ट्रैक्शन है। और जो सीकर है, जो सीकर यहाँ पर एक मोक्ष प्राप्त करने वाला भी हो सकता है, या वो डिवाइन पावर में मिल जाने वाला भी हो सकता है। तो सीकर जो है, उससे बियॉन्ड कन्वेंशनल रिलीजियस गॉड को के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। मतलब रिलीजियस जो गोल हैं, उनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा टू फाइंड यूनिटी विद द ब्रह्मा। ब्रह्मा में खुद में मिल जाने के लिए उनको इतना बियॉन्ड द कन्वेंशनल रिलीजियस आप उसे जाना पड़ेगा इंसान को। सो नाउ विद दिस स्टैंजा दिस पोएट्री इज कंक्लूडेड। सो इफ यू लाइक द वीडियो, so please hit the like button, subscribe the channel and share the video with your friends and peers. So thank you very much for listening. I'll come back with the another exciting video on the English literature. Thank you very much.